नमस्कार डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मुनमुन भट्टाचार्य। Good afternoon, Ashwini, and good afternoon to all the viewers. You're watching Doctor Speak. It's a live call-in show where you can call us and ask your questions on COVID-19. An expert panel of guests will be joining us, and they will be answering those questions for you. Also, you can call us on this number, which is flashing on your screens. You can note that down, and you can call us and ask your questions on COVID-19. Besides that, you can log on to DD News's Facebook page and you can post your queries under the live link of Dr. Speak video that you will be able to see now. और कोविड से जंग जारी है और प्रतिदिन कोविड से संक्रमण के मामले लगातार उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो उनके मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,65,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में, और पिछले 24 घंटे में ही 2,76,309 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 91.25% हो चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण का अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना की 30,35,749 वैक्सीन लगाई गई है। इसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 21,20,66,614 हो गया है, यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी तेजी से जारी है। इस 1 घंटे के शो में हम विशेषज्ञों से बात करते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनिल गुर्तरू जो कि डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर SM रहेजा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से संबद्ध हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े चुके हैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। Let's get started then. Dr. Gurtu, your opening remarks on the situation as you see now in the country, considering that there has been a 50% decline in cases in the last 3 weeks, and besides that the recovery rate is increasing. The daily new cases are the lowest in 46 days. Positivity rate is a little above 8% and it is less than 10% positivity for 6th straight day. Your assessment of the overall situation? Overall, if we assess the situation, then clearly we are past the peak, this peak, the second wave peak. It began on 1st of April, peaked around mid-May, and then subsequently it fell rather steeply. And we are now approaching June with a near tail end of the peak. The problem is the psychology that develops out of this phenomenon, observing the peak rise and fall, and now we are out. The psychology becomes, so we are out, and so let's get back to the old world of behavior. And therein lies the rub or the danger. The biggest danger or problem is not with the peak, but the fact that we have crossed the peak. And the problems on the way down will be far more greater in terms of impact of triggering another wave. So all the more imperative that since we are now coming out of this peak, we get back to the basics of COVID appropriate behavior and increase our vaccination drive. And thirdly, of course, as you just said, the surveillance, test, track and treat should fall in place. All these three focused primarily on our post-peak behavior that we adopt will determine whether we remain past this peak or we begin another climb up another peak. It's that way, yeah. So that's how waves operate. Would you agree, Dr. Raheja? And what are the precautions that one must take at a time when active cases are on a continuous decline so that vulnerability or exposure to the infection can be contained? Yeah, this is a very, very good question, I will say, because now the number of cases are decreasing, and this is the time when we should not be complacent. The number are decreasing because there was a lockdown, so all of us were maintaining the COVID appropriate behavior, wearing mask, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, हैंड हाइजीन,
and all the other precautions. So now since the cases are decreasing, this is the right time that we don't get complacent. I will say there is nothing to panic, but precaution is the need of the hour. COVID appropriate behavior must continue at this hour and for another 6 months or so. Like जी. it is very simple. What I call is social vaccine. Please wear your mask properly, covering your nose, your mouth, and protect yourself. जी. It is a very simple thing all of us can do and protect ourselves, protect our family, protect our friends, protect our society. So please don't wear it like this or this, because you will see there was a study which was conducted and it is surprisingly that only 14% of the people were found to be wearing the mask properly. And when you are wearing it, keep the sleeve on the upper side, on the nose, just make it tight, compress it from here, and must ensure that there is no air entering from the sides and from the nose. If we can take this, we are protected to the tune of 80 to 90%. Very simple, 2 yards distance, maintain the proper distance, try to avoid close environment like sharing lunch with your colleagues, friends, and other people. Talking from a distance, and hand hygiene is another very important issue, because these droplets, once they are on some formites like tabletop, computer, pen, pencil, door handles, and then you touch your mouth, nose, and eyes, because we have to understand this virus is with us, within our society, within our environment, and it is still there. It is invisible. So we are fighting a invisible virus. So we have to take all the precautions, because this virus can enter through the eyes, nose, and mouth. So if we can take these simple precautions, we can protect. Second important point is we must take our vaccine as per the schedule. Take an appointment on the COVID app, select your vaccination center, go at a particular time and date you are given, and please take the vaccine. Anyone above the age of 18 is eligible, plus even like. Yes. हमारे साथ डॉक्टर नीलांबर भट्ट भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी, लगातार मामलों में गिरावट आ रही, लेकिन तब भी 1,65,000 मामले कम नहीं है प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखें। क्या दर्शकों को राय देंगे, क्योंकि लोग बड़ी तेजी से निश्चिंत हो रहे हैं, उनको लग रहा नहीं बस कोरोना से समाप्त जो लहर आई थी वो समाप्त हो गई, हम बच गए हैं। लेकिन ऐसे में और ज्यादा जब लोग लापरवाह होते हैं तो संक्रमण का खतरा और बढ़ता है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसा कि डॉक्टर रहेजा अभी बता रहे थे कि मामलों में तेजी से कमी आई है, जिस तेजी से हमारे देश में कोरोना ने दूसरी लहर में रफ्तार पकड़ी थी, उसी तेजी से कम भी हुए। लेकिन हमें अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं छोड़ना है। और अभी बातें चल रही हैं कि तीसरी वेव भी आएगी, वो इसलिए चल रही हैं कि हम पूरी तरह से अभी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, और सबको वैक्सीन लगाने का सरकार ने लगभग निश्चय किया है कि दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती है और सबका प्रोटेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक हमको जो मेजर्स अभी हम ले रहे हैं वो जारी रखने पड़ेंगे। हालांकि अभी हम लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन कह सकते हैं, या कोविड कर्फ्यू जो लगे हुए हैं, इस वजह से फोर्स रूप में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, गैदरिंग नहीं हो रही है, सिनेमा नहीं जा रहे हैं, मॉल नहीं जा रहे हैं, और ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ नहीं हो रही, स्कूलों में छुट्टी है, और जो सार्वजनिक स्थानों में भी गैदरिंग, शादी, बारात इसमें नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही फेज वाइज ये चीजें हटाई जाएंगी, संभवतः जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम इस पीड़ादायक जो हमारा दूसरा वेव का इस समय रहा है, इसको न भूलें।
और हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और प्रॉपर मास्किंग, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे भी, अब कितने समय ये वायरस का प्रकोप रहेगा ये नहीं बता सकते हैं। और दूसरी वैक्सीन की डोज, तीसरी वैक्सीन की डोज 2 तो लगेंगी अभी, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार। अभी हमें सारी सावधानियां लगातार जारी रखनी बरतनी चाहिए। जी, हमारे एक दर्शक हैं मुनमुन वागेश वर्मा, जो कि फेसबुक पर सवाल कर रहे हैं कि 17 दिन पहले वो कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन उन्हें स्वाद एवं गंध अभी उनको पता नहीं चल रहा है, हल्का सर्दी जैसे सिम्टम्स बने रहते हैं, आइसोलेशन में अभी भी हैं वो, 17 दिन में भी आइसोलेशन समाप्त करना चाहते हैं, साथ साथ ये कह रहे हैं कि क्या मुझे और टेस्ट कराना चाहिए? डॉक्टर गुरतरू, अगर आपका ऑक्सीजन ठीक है, जो लगता है, तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सूंघने की क्षमता है और जो स्वाद कम हो गया है, वो अपने आप वापस आ जाएगा। लगभग सभी का आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगते हैं, या आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते में आ जाता है वापस। कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। There's a caller who's joined us. रतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग RT-PCR जांच करा रहे हैं, उनका निगेटिव आता है, लेकिन वो ही शख्स जब CT स्कैन कराता तो पॉजिटिव आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, RT-PCR कराते हैं ओनली, इसके बाद जब वो CT स्कैन नहीं कराते हैं, जबकि उनको कोविड होता है। तो इसमें हम कैसे निश्चित करें कि इस व्यक्ति को कोविड है या नहीं? जी डॉक्टर भट्ट। जी, आपने ये अच्छा सवाल इसलिए पूछा कि अधिकतर लोग जो मरीज हैं वो इस सवाल को लेके हमारे पास भी दिन प्रतिदिन आते हैं और पूछते रहते हैं टेली कंसल्टेशन में भी। इसमें देखिए ऐसा है, अगर व्यक्ति सिम्टोमेटिक है, जिसको लक्षण है खांसी जुकाम बुखार के, उसको टेस्ट के लिए RT-PCR एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो ICMR द्वारा निर्धारित किया गया है। इसकी जो बीमारी को पकड़ने का प्रतिशत है वो 70% है, 70%। ये किसी व्यक्ति को बीमारी है तो उसमें 100 में से 70 लोगों को पकड़ लेगा, लेकिन 30% को ये छोड़ सकता है। अगर व्यक्ति सिम्टोमेटिक है, उसको खांसी जुकाम बुखार उसके लक्षण हैं और ठीक नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन का लक्षण है और टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसी कंडीशन में उसको अस्पताल में भर्ती होने या ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, उस कंडीशन में ही उसका CT स्कैन होना चाहिए। हर व्यक्ति का जिसका PCR पॉजिटिव है और सिम्टोमेटिक है तो उसको तुरंत CT स्कैन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 80 से 85% केसेज माइल्ड केसेज होते हैं और जो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर PCR सिम्टोमेटिक हैं, PCR में आपका नहीं आया है, अगर आपका चिकित्सक आपको रिकमेंड करता है HRCT लंग का होना चाहिए, तभी कराएं। There's another question who's come on Facebook. Dr. Raheja, I'll come to you with that. There's a caller who's asking that I am 44 years old, 14 days isolation के बाद फिर RT-PCR पॉजिटिव आया है, कोई सिम्टम नहीं है, मेरा C रिएक्टिव प्रोटीन 1.2 है, मैं क्या आइसोलेशन कंटिन्यू करूं? हाँ देखिए, जो रिकमेंडेड है वो 10 डेज का आइसोलेशन है। 7 डेज आप सिम्टोमेटिक हैं और यदि आप आखिर के 3 दिन या में आपको कोई बुखार नहीं आया तो आप अपना होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। जहां तक RT-PCR का सवाल है, ये जो है RNA, ये जो डेड वायरस है, इसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये जो 14 डेज पे पॉजिटिव आता है RT-PCR, तो ये रिकमेंडेड ही नहीं है कि आपको 14 डेज पे RT-PCR दोबारा कराना है। यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई बुखार नहीं है पिछले 3 दिन से और क्लिनिकली आप सेटल्ड हैं, तो आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्गाइजिंग इंफॉर्मेशन मिलती है आपको और एंजाइटी क्रिएट होती है इससे। RT-PCR टेस्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये जब आपको इन्फेक्शन हुआ तब ये वायरस को डिटेक्ट करेगा, लाइव वायरस को डिटेक्ट करेगा, RT-PCR पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन 7-10 डेज के बाद जो उसका जो डेड प्रोटीन है वायरस का, ये उसको भी कैच कर लेगा।
तो डेड वायरस को भी ये कैच करेगा और तो भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है। जी तो प्लीज आप ऐसे वाली एंजाइटी क्रिएट ना करें अपने मन में। अच्छा खाना खाएं, इसमें हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल्स, सूप, एंटीऑक्सीडेंट, फल और सब्जियां, नींद पूरी लें, डीप ब्रीदिंग करें, पानी ज्यादा पिएं, खुश रहें और तनाव मुक्त रहें। क्योंकि ये देखा गया है कि हम इतने पेशेंट्स पर कोविड का इलाज कर रहे हैं, तो हमने अक्सर पाया है कि पेशेंट कोरोना से ठीक होने के बाद भी पोस्ट कोविड उसमें सिक्वली कुछ ना कुछ आ जाती है। कुछ के बीच में डर पैदा हो जाता है, कुछ एक पेशेंट्स को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ को कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऑन दी होल 95% पेशेंट जो कोरोना के हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई सिक्वली नहीं आती। 80% तो एसिम्प्टोमेटिक और जिनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम होंगे, 10-15% को मॉडरेट सिम्टम्स आएंगे और 5% को सीवियर कोविड होगा। तो आपको ये देखना है कि पोस्ट कोविड भी आपको रिहेबिलिटेशन करनी है। और फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी के लिए ये मैसेज होना चाहिए कि कोविड पेशेंट के लिए प्लीज कोई स्टिग्मा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को इसमें से हमारे में से भी किसी को कोविड हो सकता है। तो हमें पेशेंट के साथ एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी दिखानी है और उसको ठीक होने के बाद उसको सपोर्ट करना है, उसको फैमिली के साथ इन्वॉल्व करना है, अच्छा खाना खिलाना है ताकि उसकी जो रिकवरी है वो और अच्छे से हो। हाँ, इसमें डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये एक्सरसाइजेज और माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी शुरू करनी है। शुरू में 5-10 मिनट चलना है, फिर 10-15 मिनट बढ़ाना है। ग्रेडेड वे में आपको अपना एक्सरसाइज, शरीर का फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। एकदम एक्यूट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। हमने कई पेशेंट देखे, यंग लड़के जिनको कोविड हुआ और जैसे ठीक हुए एकदम जिम में चले गए और वहां पे उनका हार्ट रेट बढ़ गया। तो ये हमें समझना है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी बॉडी के सेल्स के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन रहती है 4 हफ्ते 6 हफ्ते, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। हमें बॉडी को रिकवर करने का टाइम देना है। तो ठीक होने के बाद भी अच्छा खाना खाना और फिजिकल एक्टिविटी को ग्रेडेड वे में करना है। शुरू में 5-10 मिनट चले, फिर 15-20 मिनट, फिर 25 मिनट, और एकदम सिवियर एक्टिविटी जैसे जिम है ये वाली हमें अवॉइड करना चाहिए इमीडिएटली पोस्ट रिकवरी। डॉक्टर गुरथरू, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में बहुत जगहों पर डायग्नोस्टिक सिस्टम उतना नहीं होता, डायग्नोस नहीं करा पाते, सीटी स्कैन, एक्सरे की भी मशीनें नहीं होती हैं। अगर किसी को कोविड हुआ है तो वो फिर कैसे माने कि उसका जो फेफड़ा है अभी भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है? ऑक्सीजन लेवल तो वो मान लीजिए नापता रहेगा, कुछ डॉक्टर साहब बताते हैं कि 6 मिनट वो चलें, फिर उसके बाद देखें अगर ऑक्सीमीटर पे। ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि बगैर जांच के भी वो कैसे ये तय करें कि उनका फेफड़ा अभी संक्रमित नहीं हुआ है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तब भी। सब में सरल तरीका तो यही है कि आप अपने आप से पूछें, क्या मेरे को चलने पे सांस ज्यादा फूलती है या नहीं? जो हरकत मैं करता हूं उससे सांस फूलती है या नहीं? अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, जब मैं बात करता हूं, अगर बात करते करते इतनी सांस फूले कि मैं एक पूरी बात नहीं कह पाऊं और बीच में तोड़ना पड़े सांस की वजह, फूलने की वजह से जी, अगर हां तो कुछ गड़बड़ है और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। छाती में कोई दबाव वाला दर्द जो घंटों तक चल रहा है, छुटपुट होता रहता है, जो घंटे तक लगातार कायम है, अगर नहीं तो कुछ नहीं। तो घूम फिर के ये 3 चीजें सवाल आप करें अपने आप से, क्या मेरे को सांस अपने जो भी मेरा एक स्तर है उससे ज्यादा सांस फूलने लगी है हाल में या नहीं? दूसरी, बात करते हुए क्या इतनी सांस फूल जाती है कि मैं बात पूरी कर नहीं पाता और रोकनी पड़ती है बात सांस लेने के लिए? और तीसरा, क्या एक दबदबा वाला जो दर्द है वो कायम है काफी घंटों तक? अगर इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, वॉक टेस्ट वगैरह, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेटर है और बता देता है कि आपकी सारी फिजियोलॉजी, फेफड़ों की फिजियोलॉजी ठीक कायम है। अगर इनमें से किसी भी 3 का आंसर है कि हाँ
सांस ज्यादा फूल रही है, बात नहीं कर पा रहा हूं, सांस ज्यादा फूलने लगती है बात करते करते, तो आपके पास दो रास्ते हैं गांव में। हर गांव में एक विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन कमिटी होती है, हर गांव में है। और वो जो विलेज न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन कमिटी है वो, और जो उससे जुड़ा हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इनको अब मुख्य रूप से गांव में जितनी भी जो सलाह देनी है या फैसला करना है मेडिकल केयर का, उसका चार्ज दिया है। तो आप अपने आशा से, आंगनवाड़ी वर्कर से या एएनएम से, जो भी है, आशा तो हर गांव में है, उनसे संपर्क करिए कि मेरे को सांस फूल रही है या बात करते हुए ज्यादा सांस फूलने लगी है, हाल में नई चीज है ये। तो वो आपको फिर एक पल्स ऑक्सीमीटर मिला हुआ है उन लोगों को, वो पल्स ऑक्सीमीटर लेके आएंगे आपके पास और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक करेंगे। अगर आपका ऑक्सीजन 94, 93 से भी ज्यादा है, कोई खतरा नहीं है आपको। अगर कुछ बीच में है या पता नहीं लग पा रहा है, कभी इस पार कभी उस पार आ रहा है ऑक्सीजन, तब हम करते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी आराम कर लिया 5 मिनट, बिल्कुल आराम करने के बाद आपने अपना बैठे हुए बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में, आराम के स्टेट में आपने अपना ऑक्सीमीटर से पल्स रिकॉर्ड किया, वो जितना भी है, और उसके बाद 6 मिनट आप चलेंगे और 6 मिनट चलने के बाद आप फिर से चेक करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो अगर इसमें गिरावट आती है 4%, आपके बेसलाइन से इसमें 4% गिरावट आती है 6 मिनट चलने के बाद, 6 मिनट वॉक के बाद, तो एक ये संकेत करता है कि आपको इस वक्त वो आपको आशा या आंगनवाड़ी वर्कर आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाएगी, जो आपसे गांव से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 30,000 लोग होंगे, उसमें 30,000 लोग से जुड़ा रहता है। या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको हमेशा चिकित्सक, मेडिकल, गायनी वगैरह मिलेंगे, वो आपको देखेंगे। और हर गांव के क्लस्टर से अब 30 बेडेड कोविड केयर सेंटर्स भी बना दिए गए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वो क्या है, वो आपको वहां रखेंगे या आपको आगे पीएचसी से भी आगे रेफर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक। तो ये पूरा सिस्टम है और ये तभी करना है आपको अगर आपकी सांस फूल रही है। अगर नहीं फूल रही है तो आपको कुछ नहीं करना। Absolutely. A caller has joined us. Rakesh joins us from Delhi. Please ask your question. Rakesh, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं राकेश दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी है 62 साल की और वो डायबिटिक भी है और थायराइड की प्रॉब्लम भी है उनको। और कुछ टाइम पहले मेरी थर्मोबोलिज्म हुआ था, तो उसमें लंग्स की तरफ चला गया था क्लॉट, और वो उसका फिर ब्लड थिनर दिए गए थे। 1 साल तक दवाई ली थी इनको हार्ट की और इसकी। अभी रिसेंटली इको टेस्ट कराया था तो उसमें तो 30% आ रहा था। सीवियर एलवी सिस्टोडाइफेक्शन, LVEF 30%, LV कैविटी डायलेटेड है, उसका साइज 7.3, 6.9 सेंटीमीटर है। माइल्ड MR, माइल्ड TR उसकी रिपोर्ट में है। और ऑक्सीजन लेवल जो है उनकी 93 to 40% नॉर्मल रहती है। और ब्लड शुगर 150 से 220 फास्टिंग में 200 रहती है फास्टिंग में। तो क्या इस स्टेज में उन्हें वो वैक्सीन ले सकती हैं, और ले सकती हैं तो कौन सी वैक्सीन ले सकती हैं? डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी। जी, आपका मरीज को डायबिटीज है, 60 ईयर से ऊपर की हैं और LV डिस्फंक्शन है इकोकार्डियोग्राफी में। LV इजेक्शन फ्रैक्शन 30% है आपने बताया। इसमें वैक्सीन लगा सकते हैं। डायबिटीज का लेवल जरूर आपका फास्टिंग 150 to 200 बता रहे हैं आप। थोड़ा सा डायबिटीज को और अच्छे से कंट्रोल करिए। और वैक्सीन जो इसमें साइड इफेक्ट है, वैक्सीन का हार्ट पे कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है। ऑलरेडी आपको एम्बोलिक फिनोमेना भी हुए हैं, ब्लड थिनर भी ले रहे हैं, आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। और लेकिन डायबिटीज को एग्रेसिवली थोड़ा कंट्रोल करिए। फास्टिंग शुगर का जो लेवल है वो 130 से कम रहना चाहिए। तो आप थोड़ा अपने डॉक्टर से मिलकर डायबिटीज की दवाइयों को बढ़वा सकते हैं और वैक्सीन लगवाना चाहिए आपको।
Right, Dr. Bhatt, another question is there on the issue of whether one can go in for vaccination or not. Can a person with hives take vaccination? The person has immunocap allergy, panel positive for dust weeds, moles, grasses and common pigweed. Rest all panel test is negative. The allergy of dust, grass, lemongrass or sort of pollutant is not a contraindication for COVID vaccination. One can go for vaccination for, even is having or this dust allergy, pollen allergy. One has to take the COVID vaccination because only few chemicals, drug allergy is severe in case they can report it before getting the jab at vaccination center, and they must spell out their drug sensitivity history at COVID vaccination center. जी, हमारी दर्शक हैं दीपिका कुमार, वो करें कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद 7 दिन तक उनको 32 mg स्टेरॉइड चला और धीरे धीरे वो अगले 3 दिनों में वो कम कर दिया गया। अभी वो एकदम ठीक है, डायबिटिक भी नहीं है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज after ending the consumption of a steroid, the immune system gets back to normal so that it can fight with viral or bacterial infection as before, that is before the introduction of steroid. बेसिक एक सवाल मूलभूत जानना चाह रहे हैं डॉक्टर रहेजा कि कब पूरा ये इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा उनका। हाँ जी, देखिए जैसे बता रहे हैं कि इनको स्टेरॉइड दिया गया है तो इनको जो कोविड हुआ है दैट मस्ट बी मॉडरेट टू सीवियर, और ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड को धीरे धीरे टेपर करना चाहिए। जो ये बता रही है कि टेपर कर दिया गया है तो इम्यूनिटी धीरे धीरे 4 हफ्ते के बीच में नॉर्मल आ जाती है। इस समय जरूरी है कि आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। अच्छा खाना खाएं, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, पानी ज्यादा पिएं, नींद पूरी लें, खुश रहें और अपने दोस्तों से, फ्रेंड से मिलें जुलें। मेंटल प्रेशर कम करना बहुत जरूरी है पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी। और दूसरी चीज है कि हमें ये देखना है कि स्टेरॉइड अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे रहे हैं तो स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज में देखा गया है कि ब्लड शुगर काफी शूट अप कर जाता है। तो हमें ऐसे पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना होता है और जब स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो भी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब मॉनिटर किया जाता है। आई विश वो इनके डॉक्टर ने किया होगा और ठीक होने के बाद आप अपना रिकवरी को चेक कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे 6 मिनट वाला टेस्ट देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ये एपरेटस है पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि आपको कुछ एक स्टेट्स में सरकार के द्वारा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फ्री दिया जाता है, लेकिन ये 1000-1500 रुपए का अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसमें आपने जैसे ही लगाया आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेरा इस समय आ रहा है 98%, तो इसमें पल्स रेट भी आता है और ये भी आता है। तो आपको 6 मिनट चलना है, 6 मिनट अराउंड 400-500 मीटर चलना है और उसके बाद ये देखना है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 3% से ज्यादा अगर गिरता है, 94 से नीचे चला जाता है, लाइक 92, 93, जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का SpO2 दैट इज 94 एंड अबव। सो if it falls below 94 then you should consult your doctor and follow up with the doctors. And I wish अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि इसमें हम CT स्कोर भी देखते हैं, CT स्कैन, चेस्ट भी किया होगा शायद इनका डॉक्टर्स ने, अगर ये स्टेरॉइड ले रहे हैं, मॉडरेट टू सीवियर डिसीज है। और ये अक्सर देखा गया, आपका इससे पहले वाला एक प्रश्न था इसमें कि आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन उसमें पॉजिटिव आया, तो ये देखा गया है कि RT-PCR टेस्ट जो है 70% तक पॉजिटिव आता है, 30% पेशेंट्स में फॉल्स नेगेटिव आता है। उसकी कुछ एक वजह है टेक्निकल कि पहले 1-2 दिन जब टेस्ट आपने बहुत जल्दी कराया है तो वायरल लोड कम होता है, या स्वैब ठीक से नहीं लिया गया, या उसको ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं किया गया टेम्परेचर पे, तो कुछ एक इसमें टेक्निकल कमियां हैं। तो अगर वो शुरू का RT-PCR नेगेटिव आया तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप एक रिपीट RT-PCR कराइए 2-3 दिन के बाद, लाइक 4थे-5वें दिन। और अगर पेशेंट को मॉडरेट ऑक्सीजन डिक्रीज के लक्षण आ रहे हैं तो CT स्कैन एक अनदर ऑप्शन रहता है, जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये माइल्ड कोविड है, लाइक अगर CT स्कोर लेस देन 9 है
या 9 to 15 है तो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है, और 16 एंड अबव सीवियर कैटेगरी में आता है। तो ये सारे ऑप्शंस आजकल हमारे पास है, और हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इस समय टेस्टिंग लैब्स हैं 2500 से ऊपर। शुरू में जब कोविड आया तो एक लैब थी। हमारे पास सफिशिएंट दवाइयां हैं, सारी चीजें हैं, और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सेकेंड वेव को भी कंट्रोल कर लिया है, और ये कंटिन्यू करना है। डॉक्टर साहब, रत्ना है दिल्ली से, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रही है। डॉक्टर रहेजा, रत्ना जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है दिल्ली से। रत्ना जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर हमें कोविड हुआ है, हमारे घर में किसी को कोविड हुआ है, तो उसके कितने टाइम के बाद हम वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, जैसे मेरे पापा को कोविड का फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगने के 1 महीने बाद उनको कोविड हो गया, ही इज 75 ईयर ओल्ड। अब उनका जो सेकंड डोज है जो कि 84 डेज के बाद ड्यू है, तो क्या हमें 84 डेज के बाद लगवाना है या उसको हमें पोस्टपोन करना होगा? जी, थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके। इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है लास्ट वीक में ही, कि यदि आपको कोविड हो गया है तो आपको वैक्सीनेशन 3 महीने बाद फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी लगवाना है। आई रिपीट, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी। और यदि आपने वैक्सीन का 1 डोज लगवाया और उसके बाद आपको कोविड हो गया, तो भी आपको 3 महीने वेट करना है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यदि आपको कोविड हो जाता है तो आपके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो कि हमें फर्दर इन्फेक्शन से 3 या 6 महीने तक बचा के रखती है। ये हमारी स्टडीज बताती हैं। तो सबसे जरूरी है कि अगर ऐसा हो गया तो आप 3 महीने बाद जाके अपना सेकंड डोज लगवाएं कोविड होने के बाद। और यदि आपको कोविड हुआ है, आपको किसी प्रकार का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दिया गया है या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, अब तो प्लाज्मा थेरेपी हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइन में नहीं है, तो भी आपको 3 महीने वेट करना है। तो ये 3 महीने का हमने इसीलिए फिगर दिया है कि सबको आसानी से याद हो जाए कि अगर आपको कोरोना हुआ है, वैक्सीन 3 महीने बाद लगेगी। पहली डोज लगी, कोरोना हो गया, वैक्सीन 3 महीने बाद लगेगी। कोरोना हुआ, आपको प्लाज्मा थेरेपी दी गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई, तो भी आपने 3 महीने वेट करना है। तो सिंपल है ये, और ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे पहले वैक्सीन देने का हमारे को जो वैज्ञानिक है, बिकॉज हम जो भी आजकल मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं दैट इज साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड, तो उसके हिसाब से ये सारी गाइडलाइन बनाई गई हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए। Anshu Jain is asking Dr. Gurtu, there's a question on whether a certain set of medicines that are being taken should be continued or not. So the question is that my husband had COVID 5 days after Covishield vaccine and thereafter got treatment at hospital where antibiotics and steroids were given for 6 days even though oxygen level was above 96. After discharge, Medrol was taken of 16 mg 11 times, 8 mg 4 times, 4 mg 3 times and Eloquis 2.5 mg 13 times for 15 days after discharge. Until yesterday, he has been taking Rosavas ASP 10/75 for 29 days and Odimont LC plus EVN LC for last 10 days, which he stopped 2 days ago. Should he continue the vaccine? He is fine. He has no weakness, no history of BP, sugar or heart-related problems. Bataiye, Dr. Bhatt. He had a mild case. Saturation was 96%, I believe, as you said. So he does not require any COVID-specific treatment. Nothing. No steroids, no antibiotics, no aspirin, no atorvastatin, rosuvastatin, unless aspirin and rosuvastatin are being given for some independent cardiovascular or metabolic risk, which he or she may have had earlier. From the perspective of COVID in this person with 96% saturation during the illness, nothing specific to COVID, neither steroids nor anything else are required. Just be normal. I think you're okay. There's a related question. Yeah. Manjeet Bawa is asking if someone has mild COVID and can be comfortable only with paracetamol, then does he still have to take other COVID medicines like doxycycline and erythromycin? No, absolutely no.
both doxycycline and erythromycin are not part of any standard protocols. They are antibiotics which work against bacteria. This is virus. Nothing other than paracetamol, rest, monitor your saturation using a pulse oximeter if you have, or your symptoms, good hydration, nothing else, just monitoring. जी, हमारे एक दर्शक है महेश म्याकल, जो कह रहे कि 58 वर्ष की उनकी पत्नी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है। वो 20 mg हफ्ते भर में एक बार वो मेथाट्रॉक्सिन लेती हैं, और साथ ही साथ एक और दवा उन्होंने लिखा है फेसबुक पर हमें, वो मेथाट्रॉक्सिन, हाँ मेथाट्रॉक्सेट टैबलेट, और 2 mg पर डे वो ज़ेम्प्रेड स्टेरॉइड लेती हैं, और हल्का उनको इन्फ्लेमेशन भी है हाथ में। क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी? जी, वैक्सीन ले सकती हैं। जो रूमेटॉइड के पेशेंट हैं, अमेरिकन रूमेटॉइड एसोसिएशन की गाइडलाइंस है, उसमें यह है कि आप मेथोट्रेक्सेट को वैक्सीन लेने के दिन तक जो पहले की डोज है वीकली ली जाती है, इसको लेते रहें। वैक्सीन लेने के बाद एक डोज आपको मिस करनी है। जो वैक्सीन लगने के बाद जो नेक्स्ट डोज है उसको मिस करने के बाद पुनः उसको चालू कर दीजिए। देखा गया है कि जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जिनको कहते हैं DMRT, इनका वैक्सीन पर की और पेशेंट की इम्यूनिटी पे कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गाइडलाइंस में है, आप नेक्स्ट डोज उसकी मिस करिएगा एक बस। Dr. Bhatt, Nitin Pant is asking, my fibula, tibia and patella bone were fractured, so I'm taking its medicine also. Am I eligible now to take vaccine, or will there be any complications? Fracture of tibia, fibula and patella, he might be having recovery after operation or treatment. He can take with recovery 1 month after, usually 15 days, 2 weeks, 3 weeks. Any illness in a particular man or person, he recovers after the illness, he can take the vaccine, whether it is fracture or some sort of other illnesses. जी, हमारी दर्शक है सुषमा रानी, फेसबुक पर ही, वो ये कह रहे हैं कि आई एम किडनी रेसिपिएंट एंड टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, शुड आई टेक वैक्सीन? डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी। Immunosuppressive agents, kidney patients should avoid, and better to consult the treating kidney surgeon or kidney transplant surgeon. She may be on higher dose of steroids or other immunosuppressants. Better to reduce the dose and defer the vaccination. Dr. Gurtu, yeah. Yes, she can be taken by advice of concerned treating physician. डॉक्टर रहेजा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। Right, Dr. Raheja, Manmohan Khuntia is asking, my wife has been vaccinated 2 days before. Can she continue her multivitamin and iron tablets? Yes, definitely. No issues. Vaccination, after taking the vaccination, you should take good diet. Whatever medicine you are taking, please continue to take. This is also very important for the cardiac patients, COPD patient, asthmatic patient, diabetics. So, if any patient is taking any medicine, please continue your medicine for blood pressure, diabetes, asthma, COPD, liver disease. So, this is very, very important. This is a very important question because we are getting so many patients. When they get COVID, I found diabetic patients, they stop the medicine. So because of that, the blood sugar level will shoot up very fast. And even that will make the things more complicated. So please continue, even if you get COVID and you have some comorbid condition, please continue to take your medicine as per the advice of the doctor. And even if you are going to the hospital, please take your medicine along with you. It is for the patient also. And at that time, if patient may be a bit, not well that way, the attendant of the patient must take care that whatever medicine he was taking for diabetes, blood pressure, they should take along with the patient and tell the treating physician. Please tell your treating physician that he was taking these medicine before he got the COVID infection, so that the dose can be adjusted and we can monitor the blood pressure, blood sugar and other parameters, and
treatment guidelines are properly monitored. Ji. Dr. Raheja, another question from Om Prakash Sharma. He is saying his oxygen level is 92, his age is 65. He does not have, he's saying, other symptoms of COVID. Please advise how to maintain a normal oxygen level. Does he has any COPD or asthma problem or any chronic lung disease? Because normal oxygen levels are 94 and above. And if it has been found, if somebody has COPD, asthma, or interstitial lung disease, in that case the oxygen level may be low, less than normal. I mean, so anything above 90 is okay for the body. All you should do is, if it is 92 and you are asymptomatic, one thing is, during this pandemic, please check your RT-PCR test done, because you may be asymptomatic, still you may be having the virus. So one thing is that. Second, to improve the oxygen level, pranayam, deep breathing is very, very important. For that, prone breathing, what we say, cat-cow position. Prone breathing can again increase your oxygen saturation level 4 to 5%. So, if you go into a cat-cow position, मतलब उल्टा हो जाना है अपने prone, आपका पेट नीचे हो जाएगा, कमर ऊपर आ जाएगी और आप लंबा गहरा सांस लेंगे, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है भ्रामरी प्राणायाम, बिकॉज मैं खुद भी योगा काफी करता हूँ, तो आप अगर ऐसे अच्छे सांस लेते हैं लंबे गहरे, तो उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल जो पूरा चेस्ट का लेवल पूरा खुल जाता है। जो हमारी सांस की प्रक्रिया है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहले पेट को फुलाइए, फिर चेस्ट को फुलाइए, फिर अपर चेस्ट को फुलाइए और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक से, प्राणायाम से आप अपना ऑक्सीजन लेवल, मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है, ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के, कि इससे इमीडिएटली 4 to 5% SpO2 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो व्यायाम करें सांस संबंधी। डॉक्टर गुरतरू, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इससे पहले भी एक हमारे दर्शक ने पूछा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर COPD या फिर अस्थमा, बहुत लंबे समय तक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पे स्टेरॉइड्स चलता रहता है। ऐसा क्या इस बार हो गया कोविड की दूसरी लहर में कि स्टेरॉइड 5 दिन भी दिए जाने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस या फिर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? आपका आकलन क्या है इस बारे में? म्यूकोरमाइकोसिस की जो सब में ज्यादा रिस्क है वो डायबिटीज से होता है। डायबिटीज अपने आप में म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क नहीं पैदा करती। पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी डायबिटीज, वो डायबिटीज जैसे अभी बताया था किसी ने, जिनके की ब्लड शुगर खराब है, ठीक से नियंत्रण में नहीं है, वो सिर्फ वो डायबिटिक्स जिनका नियंत्रण, शुगर का नियंत्रण खराब है, ये सब में ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनको सब में ज्यादा रिस्क है म्यूकोरमाइकोसिस का। इसके अलावा अगर स्टीरॉइड, अब कोविड के लिए 5 या 10 दिन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, आमतौर पे 5 या 7 दिन तक ही स्टीरॉइड देने का प्रोटोकॉल्स में है। तो अगर बहुत इन 5-10 दिन में कोई इम्यून सप्रेशन नहीं होता, स्टीरॉइड का इम्यून सप्रेशन 2 हफ्ते के बाद ही होता है, अनलेस बहुत हाई डोज यूज करें, वो हम नहीं करते। तो इतने छोटे दौरान अगर 5 या 7 दिन, 10 दिन तक स्टीरॉइड लिए हैं, उससे भी म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता। होता क्या है कि बहुत थोड़े स्टीरॉइड डोज से भी आपका जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल है, वो खराब हो जाता है। खराब होता हुआ शुगर लेवल, बिगड़ा हुआ शुगर लेवल निमंत्रण देता है इस म्यूकोरमाइकोसिस को। तो सब में ज्यादा खतरा है बिगड़ा हुआ शुगर लेवल, डायबिटीज नहीं, खराब डायबिटीज। तो अगर डायबिटिक कंट्रोल ठीक है, स्टीरॉइड्स आपने 7 दिन के अंदर अंदर ले लिए हैं, तो म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क इतना नहीं है जितना कि अभी इन्हीं में देखा जा रहा है ज्यादातर। A caller has joined us. Gautam joins us from Bengaluru. Please go ahead, ask your question. Munmun, can you hear me? Yes. Very good afternoon to you and very good afternoon to all the doctors over there. I recently, 2 months back, I returned back from US. My first question is connection with that. Why in US as well as in European countries, not even a single cases of mucormycosis has been reported? Correct me if I'm wrong. Number 2, is this has to do something with the new variant which has been found in India? If that be so, that how come so 2 vaccines will protect me from the future new variant? Number 3, whether can I take it into consideration that this is going to be endemic?
in connection with the booster also, till long, how long I have to continue with the booster? If I'm wrong, will I have to continue with till I rest in peace? Thank you very much. Right. Dr. Gurtu, would you like to respond to these? So the first question is regarding why mucormycosis is not there in the United States? Yeah, the short answer is it's a new phenomenon and we still do not know. We only know two things from our past knowledge of mucormycosis. The first, as I just said, a poorly controlled diabetic, not diabetes per se, a well-controlled diabetic will not get mucormycosis, never. A poorly controlled diabetic. And one assumption which remains to be tested is that India has the largest number of diabetes, people with diabetes, almost 80 million, far more than what US has. So that proportion could be reflected here, maybe, we don't know really. Yeah. And prolonged use of steroids, possibly over-the-counter use and more irrational use going beyond the protocols may have occurred, and that could be another reason. In short, we don't know whether it's an environmental factor, the particular virus causing this special type of T-cell immune suppression which predisposes diabetics to this. But only these two things we know: poorly controlled blood sugar and prolonged use of steroids. Beyond that, it's a matter of investigation, which we shall know. The second was whether it's related to a COVID variant. I think you've answered that already. Vaccine. Yeah. Vaccine protecting. I think his concern is that studies recently that have appeared in the newspapers have shown that after first dose of Covishield, only 33% protection, and after the second dose, 70-odd% protection. So am I still exposed and at risk? Here, one thing needs to be very clear. The purpose of vaccine is not to prevent you from getting infection or disease. The purpose of vaccine is to prevent you from getting severe and critical disease and prevent you from dying, death. Right. So when we say 30%, 33% after first dose and 80% after, or 70% after second dose, this is for the cumulative figure of any disease, mild and moderate being the maximum. Those will not be protected by this, or will be protected only 33% after the first dose and 80% after the second dose. Right. However, we are not interested in that right now. We are interested in preventing death and critical illness after vaccine, where the protection rates are much, much higher, verging on 90%. So the vaccine will attain its purpose of preventing death and critical illness. And that is what we want right now. The next step will be to manage the mild and moderate subsequently. So vaccine is working, will work, will protect all of us from death and critical illness, which should be all that we can expect right now. जी, हमारे दर्शक हैं जितेंद्र भाटी जोधपुर राजस्थान से। वो ये कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर, इनको कब वैक्सीन लगवाना चाहिए? डॉक्टर नीलांबर जी। हाँ जी, इसमें लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। लास्ट आई थिंक 10 डेज पहले इसका ऑर्डर आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि लैक्टेटिंग वुमेन कैन टेक दी वैक्सीन। जहां तक प्रेग्नेंट वुमेन का सवाल है, इसके लिए अभी डेटा कलेक्ट करके उस पर हम साइंटिफिकली ये देखना चाहते हैं कि इसका कोई प्रेग्नेंट वुमन में साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो होपफुली वो भी डेटा एक बार पूरा एनालाइज हो जाता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद होपफुली pregnant women can also be permitted for vaccination. But as of now, lactating women and anyone above the age of 18 years is eligible to take the vaccine. So please take the vaccine at the appropriate center near to your place. You can go to the COVID app and choose your site, date, time, and you can go there with your photo ID and your cell number you have given on the site for registration. Yes, Dr. And Raheja. take the vaccine. There's a and caller. for any further information, Yes. I will say
you can take the information from 1075. It's a toll-free Government of India number, and another number is 011-2397-8046. डॉक्टर साहब ये दूसरा वाला नंबर एक बार फिर बता दें, वो साफ नहीं आया, आवाज कट रही थी, नेटवर्क नहीं सही। दूसरा नंबर? हाँ जी, एक है टोल फ्री नंबर 1075, दूसरा है 011-2397-8046 जी, 2397-8046, 2397-8046। और इसके अलावा आप www.mohfw.gov.in की साइट से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जब आप कोविन ऐप में जाएंगे तो भी आपको काफी इंफॉर्मेशन, प्लेस, साइट, टाइम, आपको सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। So let's take the caller now. राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। राजेश आप हैं हमारे साथ? Let's move on now. Rohit Kumar Singh on Facebook is asking Dr. Bhatt that my mother was detected COVID positive on the 21st of April and is on medication till date. My mother is having high BP in the range of 150 to 180 or 90 to 100 since the last 15 days, and the doctor prescribed medicines for high BP twice in the day. During the course of the medicine, BP of my mother was in control but increased after the course of the medicine for 10 days. Kindly suggest whether high BP is post-COVID effect and how to control high BP of my mother. My mother is taking BP medicine Telmakind 40 once in a day since 3 years. Okay, your question is very valid. And you see, post-COVID, she is having COVID on 21st of April. Now almost 6 weeks is over, and still she is taking medicine for COVID. They might be steroids. Because of steroids, use of steroids, BP and sugar both goes up. You have to adjust the dose of antihypertensive, that is telmisartan. She is taking 40 milligram daily. She can go on higher dose of this telmisartan, 40 mg twice a day or 80 mg once a day. She can take because BP monitoring is constant. Monitoring should be there on daily basis, and she can adjust the dose accordingly, or she can consult to treating physician. Dr. Gurtu, there is Manish, a caller with us from Delhi. Please go ahead, ask your question. मैम मेरे भतीजे पूछिए अपना सवाल। सर मेरे भतीजे क्या नाम है, दोनों भतीजे और भतीजी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं है किस चीज में? देखना हम पढ़ मनीष। किस चीज की दिक्कत? सर जैसे कि हम बाहर से काम करके आते हैं, उसके बाद हम काम जैसा मर्जी भी करते हैं। मैं दिल्ली जल बोर्ड। अच्छा, कोरोना संक्रमित होने के इनके चांसेस कितने हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं घर में डॉक्टर गुरतरू, क्या ये प्रिकॉशंस ले जानना चाहिए? हाँ जी सर। तो घर में बच्चे हैं तो ताकि वो बचे रहें जी, तो प्रिकॉशंस वही है जो आम है, कोई खास नहीं है। यानी कि आप जब बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाइए ठीक से, और जब वापस आते हैं तो मास्क बाहर रख लीजिए, अंदर मत लाइए। और अगर आपको कोई भी संक्रमण के सिम्टम्स आ गए हैं, जैसे बुखार, गले में दर्द, छींक वगैरह कोई भी लक्षण है, तो घर पे भी मास्क लगा के रहिए और अपने आप को टेस्ट कराइए, और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नतीजे नहीं आ जाते अलग रहिए उनसे। वैसे देखा गया है कि बच्चों को जब ये संक्रमण लग जाता है तो इनमें ज़्यादा सीवियर बीमारी नहीं होती। तो बचाव वही है, मास्क लगा के रखिए, और जब संक्रमण है तो घर में भी मास्क पहनिए जी। और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और सबसे बड़ी बात यह कि संक्रमित होने से बचिए, भीड़ में जाने से बचिए, ओरल और हैंड हाइजीन इसको मेंटेन रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हम कहेंगे अपने तीनों खास मेहमानों को, डॉक्टर गुरतरू, डॉक्टर रहेजा और साथ ही साथ डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों के शंका समाधान करने के लिए। So that's it then in this edition of Dr. Speak. We'll keep coming to you at least thrice a day on a daily basis. For those whose questions could not be answered, you can try again when the show is live. Thanks for watching. नमस्कार।